Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine, enjoying your life, and learning a lot, especially 9th standard, right? Just I'm making this video really after a long time. Earlier, I made videos on 10th standard. Yeah, some work was there, but once again I started. So a lot of videos will be there in future. Don't worry about that, right? So I'll explain in Hindi and English both because that request I got from managements. तो अभी आपके सामने दिख रहा है एक ब्यूटीफुल पोएम है, देखिए सिल्वर, राइट। और स्क्रीन पे देखिए आपको सिल्वर कलर नज़र आ रहा है, राइट। सो समवेयर इट इज़ इंडिकेटिंग अबाउट स्पेशली द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज द मून लाइट। देखो ऊपर टॉप पे मून लाइट दिख रहा है। तो ये पूरा पोएम ना नेचर बेस्ड है, रिटन बाय मिस्टर वॉल्टर डेलामेर, राइट। इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम, टॉक्स अबाउट स्पेशली द मूनलाइट। तो अभी आगे बढ़ो उसके पहले मैं थोड़ा इसका मैं थीम क्लैरिफाई कर देता हूँ। और थीम के पहले और थोड़ा, अगर आप चैनल्स पर नए हैं थोड़ा सा प्रेस कर दो, लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन और शेयर बटन। पैसा तो लगता नहीं लाइक करने का, क्योंकि जो भी वीडियो बनता है ना बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इट्स अ ड्यूटी यू हैव टू अप्रिशिएट स्पेशली द पर्सन हु इज मेकिंग द वीडियो, राइट। या without wasting time, you just have to go move ahead. Fine. Now see on the screen. What is here? That is the theme of the poem. ध्यान से देखिए क्या लिखा है। ये पोएम का थीम क्या है? Okay? That thing first keep in mind. Now see. The poet describes the visible effects of moonlight on countryside. पहले countryside का मतलब, countryside यानी स्पेशली that is the where a scene especially rural area, that is the village side, right? तो poet describe the visual effects of moonlight on countryside at night. क्योंकि इतना अच्छा विजिबिलिटी नेचर की चीज़ें दिखाना है तो आपको गांव साइड में मिलेगा, इसलिए पूरा पोएम ना उन्होंने बहुत अच्छे से जो नेचर पार्ट है ना गांव का लिए है, विलेज साइड का। आप बताऊंगा पोएम, देखो लेफ्ट साइड एक पिक्चर भी है। एंड पोएट इज़ फ्रॉम यूरोप, तो जाहिर सी बात है वहाँ के सिनेरियो के हिसाब से पिक्चर भी रहेगा, राइट। तो पिक्चर में भी थोड़ा देखिए घर का डिज़ाइन देखिए, जो यूरोप अमेरिकन साइड मिलता है, हमारे इंडिया में ऐसा डिज़ाइन नहीं मिलेगा। ओके, सो द पोएट डिस्क्राइब द विजिबल इफेक्ट ऑफ मून लाइट और कंट्री साइड नाइट। नाइट टाइम जब मून लाइट पड़ती है, जो भी नेचर में वट एवर थिंग्स आर देयर, हाउ दैट इफेक्ट। The poem shows a beautiful and peaceful scene of nature. See, very nice word used by poet. Beautiful and peaceful. Yes, it's beautiful. और peaceful बहुत अच्छा लगता है, एकदम माइंड पीसफुल हो जाता है ये चीज़ देख के। Scene of nature under moonlight, right? It is a connect with. Okay, sorry. It's a sonnet. Sorry, I made mistake. It's a sonnet. Very nice thing is there. If you count the poem lines now, total 40 lines are there. It's that is called the sonnet. When the 40 lines poems are there, the sonnet. And with rhyming couplets, very nice. Don't use word here stanza. Stanza is 4 lines. Here is couplet, do line ka. Like Hindi, na Hindi also it is like the dohe is there, right? Same way. The couplets are here and total 1, 2, 3, 4, 5, 7 couplets are used by the poet. Of course 14 lines sonnet is there, obviously how many couplets will be there? 14. 2 7 ja 14, right? Now we'll move towards the poem. Yeah, I mentioned about especially that one thing, that the picture that is printed especially in text. See here, okay, very nice beautiful pic is here. That is the, see the moon, yeah, moon is there here visible, right, and stars are, and this how that the moonlight is spreading especially everywhere at night time. मैंने बोला था ना ये पोएम के पोएट बाहर के यूरोप के हैं। देखो ना तो घर का डिजाइन कैसे दिख रहा है, यूरोपियन वाला। हमारे इंडिया में घर ऐसे थोड़ी रहेंगे, यहाँ थोड़ा अलग रहता है। ओके, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ गिरती है ना तो बर्फ़ फिसल जाती है, इसलिए घर का डिजाइन ऐसा कॉनिकल होता है, और हमारे यहाँ ना पूरा एकदम फ्लैट रहता है। चलो, दैट इज द डिफरेंट थिंग इज देयर। नाउ कम टू टॉपिक, सिल्वर पोएम रिटन बाय मिस्टर वॉल्टर डेलामारे। नाउ सी that is the first couplet. Slowly, silently, now the moon.
What the poet is saying? Moon at night time, slowly and silently. Okay, what is here? Slowly and silently. Yeah. The moon slowly and silently just walks the night in the silver shoon. Shoon means shoes. Yeah, here the meaning also given here. Some meanings are not there. I'll guide you. So at night time, moon is moving slowly, silently, and just spreading silver light everywhere. And silver shoes. सी द नाइस द मून इज पर्सोनिफाइड, मून को पर्सोनिफाई किया है, जैसा मून ने सिल्वर कलर का शूज पहन के चारों तरफ चल रहा है और एवरीवेयर स्प्रेडिंग द मून लाइट. तो क्लियर हो गया. मून इज मूविंग स्लोली साइलेंटली वॉकिंग इन एट नाइट टाइम जस्ट वेयरिंग सिल्वर शूज. या दिस वे एंड दैट सी pears and see silver fruit upon silver tree, and moon is what doing? See, moon is just what is there? Moon is just spreading light here and there, and that is looking this side, that side. See, pears means what? Pears also looks. LOOKS, looks. So moon looks and sees. See, the two both words are giving same meaning. Peers means looks and sees also. It is the case of tautology. TAUTOLOGY. और देखो फर्स्ट कपलेट में क्या था? SS, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट. एलिट्रेशन तो कहीं भी आ जाता है, एलिट्रेशन आप समझ लेना, बाकी मैं क्लैरिफाई करा देता हूँ. देखो सेकंड लाइन पहली बार पर्सोनिफाई किया तो पूरा पहला कपलेट में पर्सोनिफिकेशन आएगा. ओके, देखो वॉक, राइट. ये जो वॉक वर्ड है ना, और जो शूज वर्ड, शूज कौन पहनता है? एनिमल्स पहनेंगे, ह्यूमन बींग पहनते हैं. और वॉकिंग वर्ड हम यूज करते हैं ह्यूमन बींग के लिए, और इसलिए पर्सोनिफिकेशन आ गया. इसके अलावा दूसरा एलिट्रेशन भी आ रहा है, राइट. और सेकंड मैंने बताया दिस दैट, ये दो अपोजिट वर्ड है. इट इज द एंटीथेसिस, राइट. और पियर्स और सीज के हिसाब देखें तो टोटोलॉजी आता है. एंड सिल्वर फ्रूट अपॉन सिल्वर ट्रीज, पहले मैं फर्स्ट लाइन क्लियर कर देता हूँ. सो मून इज सीइंग हियर एंड देयर, दिस वे दैट वे, लुक्स एंड सीज, राइट. एंड व्हाट सीइंग दैट? ही इज सीइंग एंड स्प्रेडिंग लाइट, silver fruit upon silver trees, due to the moonlight just everywhere. all trees, सारे trees में उनके फ्रूट सब सिल्वर कलर के दिख रहे हैं. ओके, तो मून इस तरफ उस तरफ पूरा ध्यान से देख रहा है, राइट. और क्या देख रहा है वह? कि चारों तरफ ना सिल्वर कलर नजर आ रहा है उसके लाइट के वजह से. सारे अभी देखो दो चीज हमने क्लैरिफाई कर दिया. यहाँ पे आया एक ट्रीज और फ्रूट्स. पहला इफेक्ट पहला वाला आया था चारों तरफ, फर्स्ट कपलेट मैंने बताया था चारों तरफ मून लाइट स्प्रेड हो गई है. सेकंड कपलेट मैंने क्या बताया? यहाँ पे आया नेचर के ट्रीज और फ्रूट्स मेंशन किया है, राइट. सारे ग्रासेस, प्लांट, हर जगह सिल्वर कलर, यानी पूरा रात को सब सिल्वर कलर दिख रहा है. आगे बढ़िए, थर्ड कपलेट. One by one the casement catch her beams beneath the silvery thatch. Now see, बाकी the impact of especially on the what? On the settlements. वहाँ पे जो घर है उन पे क्या सिल्वर लाइट का असर गिर रहा है. हमने सेकंड कपलेट में क्या बताया आपको? उसमें देखिए प्लांट्स, ट्रीज पे क्या असर आया. अब थर्ड में देखिए, वन बाय वन द कैसमेंट, राइट. कैसमेंट मीन्स विंडो, खिड़की. विंडोज कैच, टाइपिंग करूंगा तो इसमें ज़्यादा टाइम जाता है. चलो वाई मैं बाद में इसको इरेज कर दूंगा. विंडो लिख लीजिएगा, कैसमेंट यानी विंडो. विंडोज कैच हर बीम्स, बीम्स मीन्स रेज, बीनीथ मीन्स बिलो, BELOW, राइट. सो जस्ट वेयर द हाउसेस आर देयर, वन बाय वन द कैसमेट, विंडो, खिड़कियां ना क्या कैच कर रही? मून रेज, हर बीम्स रेज, बिलो द सिल्वरी थैच,
थैच मीन्स रूफ, छत बोलते हैं ना हिंदी में। तो लाइट छत पे आ रही सिल्वर कलर की, उसके नीचे जो खिड़की है, खिड़कियां, दे आल्सो जस्ट वो कैचिंग रिसीविंग द मून रेज, राइट। तो पूरा घर, उसका थैच, उसका विंडो, एवरीवेयर द सिल्वर लाइट इज देयर, राइट। तो यहाँ पे ट्रीज क्लैरिफाई किया, अब यहाँ पे घर, विंडो सब सिल्वर कलर हो गए। आगे बढ़ी, बाकी आगे जो क्रिएचर्स हैं, whether the animals are there, birds are there, how light is affecting them also. See, couch in his kennel like a log with paws of silver sleeps the dog. Couched, couch means lying, लेटा हुआ है, LYING, correct. In his kennel, kennel is the shelter of a dog, जहाँ पे डॉग को रखते हैं, डॉग का घर कैनल बोलते हैं उसको। लाइंग इन इज कैनल लाइक अ लॉग, तो जो डॉग है वो अपने घर में लेटा हुआ है, राइट। और कैसा दिखा दूर से, लॉग के जैसा दिख रहा है। लॉग क्या होता है, ट्रंक ऑफ अ ट्री, जैसा लकड़ी का टुकड़ा है, राइट। तो लकड़ी के टुकड़े के जैसा दिख रहा है, वो लेटा हुआ है वहाँ पे अपने घर में, ओके। तो मोस्टली बहुत यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा रहता है कि वहाँ पे एक अपने पेट एनिमल्स के लिए एक छोटा सा हाउस बना के रखते हैं, राइट। अब हमारे इंडिया में हर जगह है कि नहीं हम बोल नहीं सकते, लेकिन बट यूरोप एंड अमेरिका इट इज़ देयर, राइट। एंड लाइक अ लॉग विथ पॉज ऑफ सिल्वर स्लीप द डॉग, पॉज यू नो वेरी वेल, दैट इज द फूट, with paws, foot of silver sleeps the dog. The dog with silver paws just sleeping quietly, right? Silver sleep. The dog is sleeping, and whole dog seems in which color? Silver. Okay? तो कैनल में अपने घर में डॉग सोया हुआ है, लॉग के जैसा दिख रहा है, उसके पॉज, उसका फुल बॉडी, एवरीथिंग सेम्स इन सिल्वर कलर। और यहाँ पे देखिए फिगर ऑफ स्पीच, देखिए डॉग, ओके, कैनल लाइक अ लॉग। ये जो डॉग है किससे कंपेयर किया गया है? लॉग से, यानी सिमिली, SIMILE, सिमिली, ओके फाइन। तो एंड विथ पॉज सिल्वर स्लिप्स, इसके अलावा एलिट्रेशन भी हो जाएगा, अब देख लेना। आगे बढ़ी तो डॉग के बारे में बताया, अब आगे देखिए जितने कपलेट्स हैं ना सब में अलग अलग चीज़ है। हमने देखो, हमने यहाँ पे ट्रीज देखा, यहाँ पे हमने घर के बारे में बोला, यहाँ पे डॉग के बारे में बोला, अब बाकी क्रीचर्स के बारे में देखो। फ्रॉम देयर शैडोई कोट द वाइट ब्रेस्ट पीप ऑफ डव्स इन सिल्वर फेदर्ड स्लीप। अब देखिए वहाँ पे एक बर्ड के बारे में मेंशन किया है, ओके कौन सा बर्ड है? डव्स। फ्रॉम देयर शैडोई कोट मीन्स अगेन शेल्टर ऑफ स्पेशली द बर्ड पिजन टाइप डॉग। शैडो यू नो वेरी वेल, जहाँ पे छाया आती है। तो जहाँ पे ये डव्स, एक बर्ड का जो घर है, छोटा सा कोट है, शेल्टर है उसका, देयर शैडो, ओके, फ्रॉम देयर शैडो शेल्टर, जस्ट वहाँ पे जो शैडो आ रही है उस शैडो पे भी सिल्वर कलर आ गया। शैडोई कोट द वाइट ब्रेस्ट पीप, और दूर से उसका जो बॉडी का पार्ट्स दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेस्ट मतलब हम चेस्ट बोल सकते हैं, वाइट चेस्ट पीप्स, वेरी नाइस वर्ड। पीप्स मीन्स लिख लेना अपीयर्स, यहाँ पे नहीं दिया है, APPERS, जस्ट आई राइट इट, या इट इज द पीप। पीप मीन्स अपीयर्स, ओके, दिखता है। तो वहाँ पे क्या दिख रहा है? द ओके वाइट कलर, दैट इज वाइट ब्रेस्ट चेस्ट अपीयर्स ऑफ डव्स इन सिल्वर फेदर्ड स्लीप, एंड जस्ट दैट क्रीचर्स, what is here? That creatures, doves, feathers also looking, not feather, whole body is seems appears in silver color, and that dove is nicely sleeping in his shadowy shelter. Okay, here the white breast is there. What I'm saying here, the breast is representing the whole body here. Here not only the breast is
ब्रेस्ट इज इन सिल्वर कलर, उसका पूरा बॉडी सिल्वर कलर में दिख रहा है। आगे लिखा है ना, डव सिल्वर फेदर्ड स्लीप, ओके, एंड नाइसली स्लीपिंग स्पेशली इन हर शेल्टर, राइट। ओके, आगे देखिए, अब आगे दूसरा है, बाकी आप देख लेना, अलिट्रेशन चांसेस मोस्टली रहता है। एक बात याद रखना, जहाँ पे बाकी फिगर स्पीच ना दिमाग में बैठे ना, अलिट्रेशन के चांसेस बहुत रहता है। देख, ओके, नाउ से रात को चलो ये सब लोग सो रहे हैं, लेकिन कोई तो जाग रहा है, ओके। जैसे आप देखें ना, ड्यूटी, सब लोग तो रात को नहीं सोते ना, कुछ ड्यूटी करने वाले जागते रहते हैं, ऐसे यहाँ भी रात में ना कोई तो जाग रहा है। अब देखो, हार्वेस्ट माउस, ओके, माउस जो क्रॉप्स के सीड्स को खाता है, ओके, हर क्रॉप्स के सीड्स को खाने वाला माउस, गोज स्कैम्परिंग बाय, स्कैम्परिंग मीन्स राइट, दैट इज द रनिंग, राइट, रनिंग बाय, ओके, दैट इज रनिंग समवेयर, ओके। अब क्यों रन कर रहा है बताओ, वो दौड़ क्यों रहा है, वाई ही इज रनिंग, बिकॉज ही इज रनिंग फॉर फूड, ओके, या he is running for food with silver claws and silver eyes, okay, that is running for what, running for food with silver claws, silver claws and silver eyes, and in silver moonlight that mouse whole body seems in silver color, उसका क्लॉज वही सेम मैंने पहले वाले डॉग वाले में बताया था ना, पॉज, पंजा बोलते हैं हिंदी में, उसका फीट पंजा से, उसकी आंख सिल्वर आई, ऑल आर अपेयरिंग इन सिल्वर कलर, उसका होल बॉडी, उसका क्लॉज, उसकी आंखें सब सिल्वर कलर में दिख रही हैं, राइट। यहाँ पे देख लेना, सिल्वर कलर 2 बार आया है, राइट, इसका मतलब यहाँ पे रेपिटेशन फिगर स्पीच आएगा, okay, that you can write here, silver claws, silver eyes, fine। अब इसके अलावा अभी तो हमने क्रिएचर्स के बारे में लिया, एनिमल्स के लिया, और भी है, वाटर पार्ट का मेंशन किया गया लास्ट कपलेट में। देखिए पोएट ने क्या बोला है, एंड मूवलेस फिश इन द वाटर ग्लीम बाय सिल्वर रीड्स इन अ सिल्वर स्ट्रीम। मूवलेस मीन्स क्या होता है, स्टिल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्टिल, फिक्स्ड, मूव नहीं कर रही। रात के टाइम फिश आराम से एक जगह बैठे हुए। इन द वाटर ग्लीम, ग्लीम मीन्स इट इज द शाइन, शाइनिंग, ओके, SHINE। so the night time water, okay, water seems in which color, silver। रात के टाइम जो पानी चमक रहा है, वहाँ पे एक फिक्स्ड मोशनलेस एक फिश है वहाँ पे, राइट, स्टिल फिश है, बाय सिल्वर, नियर सिल्वर रीड्स, रीड होता है टॉल ग्रास, किसके बगल में, एक टॉल ग्रास, रीड्स प्लांट, रीड जो प्लांट है उसको ग्रास बोलते हैं, टॉल ग्रास में बोलते हैं, और टॉल ग्रास के बगल में, जो टॉल ग्रास भी सिल्वर कलर में दिख रही है, उसके बगल में फिश आराम से पानी में बैठी है, और इन सिल्वर स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है स्मॉल रिवर, राइट, यू नो वेरी वेल, स्मॉल नैरो रिवर, छोटी नदी। तो क्लियर हो गया। तो एक फिक्स फेस पानी में, सिल्वर रीड्स के बगल में, नदी के अंदर आराम कर रही है, okay, that in the more still fish in water nearby the reeds in a river enjoying right time। तो पूरा आपने देखा, वाटर होने दो, प्लांट होने दो, whatever is there, all seems in which color, silver। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा पोएट ने प्रेजेंटेशन किया है कि रात के टाइम कैसे पूरा सब सिल्वर कलर में कन्वर्ट हो गया है, राइट। तो इसमें यही इसका मेन थीम था, कैसे सिल्वर, एक पोइट का इमेजिनेशन पावर होता है, सबके बस की बात नहीं। कैसे देखिए इसने एक सिल्वर मून लाइट पे कितनी अच्छी पोएम लिखा है इन्होंने, ओके, पूरा ब्यूटीफुल नेचर को प्रेजेंट किया है, इतनी सी इमेजरी नेचर की यूज किया है, ट्रीज देखिए, थैच, विंडो, राइट, एनिमल, डॉग लिया, डव्स लिया, फिश लिया, वाटर, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अब देखो ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है,
which of the objects, animals, etc. Which of the objects, animals, etc. in the poem are rest without any motion? कौन कौन से क्रीचर्स आराम कर रहे हैं? देखिए आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। इसमें क्या लिखा है? नॉट ओनली एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। चलो ध्यान से देखो, पहला आ गया ट्री, राइट। ट्री के अलावा और क्या आया? कैसमेंट, राइट। कैसमेंट आया, और क्या आ रहा है? एंड thatch also, then kennel also might come. Yeah, kennel is there, coat is there, as well as the water also, right? So these are just, they are विदाउट एनी मोशन, मूवमेंट नहीं हो रहा है। किस मूवमेंट कौन कर रहा है? मूवमेंट करने वाले देखिए इसमें ये खाली ये चूहा, माउस, और रात के टाइम जस्ट इज रनिंग बाय, बाकी सब स्टिल है, लेकिन ए मूव कर रहा है। ओके, सो दीज वर द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन दिस पोएम। तो एट लास्ट आई विल से थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। ओके, अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो लाइक शेयर बटन कर दीजिए, और आई होप योर डाउट्स आर क्लियर। Okay, may God bless you. Thank you.